Assalamu alaikum class. Today we have to do the examples of first chapter. जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स हैं वो अभी आज हम करेंगे पहले. So first example is example number 1, which says a sample of neon is found to be consisting of neon 10 or 20 atomic mass, neon 21, neon 22 in the percentage of 90.92, 0.26 and 8.82% respectively. Calculate the fractional atomic mass of neon. तो हमने क्या करना है, fractional atomic mass find करना है. For that we are going to use the formula in which we have to multiply the atomic mass of first isotope with its percentage plus atomic mass of second isotope into its percentage plus atomic mass of third isotope into its percentage divided by 100. Okay, so check over here. Our first isotope has mass 20 and percentage 90.92. So 20 into 90.92 plus second isotope, which has mass 21 and percentage 0.26%. We will multiply both of these plus we will multiply the mass of third isotope with 8.82% its percentage, and we will divide it by 100. The answer is 20.18, which is the average atomic mass of neon. Our second example is related to the percentage of elements. कल हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए, विच इज मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. अभी हमारे पास जो एग्जांपल है, इट सेज 8.657% gram of compounds was decomposed into its elements and it gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen, 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compounds under study. So हमने तीनों elements की individually percentage composition find करनी है. We will use this formula for finding the percentage. So the percentage of carbon is equal to mass of carbon, जो कि यहाँ पे हमें given है, divided by mass of compound which is also given over here into 100. तो इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ कार्बन कितना है 5.217 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड विच इज 8.657 इंटू 100. सो आंसर इज 60.28. इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर इज 0.962 while mass of compound is 8.657. We will divide these two and multiply by 100 and we will get 11.11. Again, for finding the percentage of oxygen, we will divide the mass of oxygen 2.478 with the mass of compound which is 8.657 and we will get the percentage 28.62. Okay. The next topic is empirical formula. Empirical formula की कल डिस्कशन हो गई थी and I told you how to find the empirical formula. मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ. First you have to find determine the percentage composition. Percentage composition आपने इस तरह से find करनी है. Then you have to find number of gram atoms और number of moles. उसके लिए percentage composition को atomic mass से divide करना है. थर्ड स्टेप में हमने atomic ratio find करनी है. Atomic ratio कैसे find करेंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने यहाँ पे फाइंड किए हैं उसमें जो सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे आपने डिवाइड कर लेना है तीनों को. एंड द लास्ट वन इज़ कि अगर हमारे पास रेशो होल नंबर हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने इसको होल रेशो में कन्वर्ट कर लेना है. अब इस पूरी स्टडी पे हमने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3, ascorbic acid contains 40.92% carbon, 4.58% hydrogen and 54.5% oxygen by mass. What is the empirical formula of ascorbic acid? ठीक है, हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑलरेडी दी हुई है. इट मीन्स हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू आवर सेकेंड स्टेप विच सेज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज विद एटॉमिक मास. तो अगर हमने कार्बन का जब हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं उसकी परसेंटेज है 40.92. सो वी विल डिवाइड दिस परसेंटेज बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विच इज़ 12. तो 40.92 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3.41 gram atoms. Again, hydrogen के लिए we will divide the percentage of hydrogen 4.58 by its atomic mass which is 1.008. We will get the answer 4.54 gram atoms. And for finding the number of grams of oxygen, we will divide percentage of oxygen which is 54.5
by its mass which is 16 gram per mole and we will get the number of gram atoms. अब थर्ड स्टेप था एटॉमिक रेशो फाइंड करना. रेशो किसकी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सो कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, ये तीनों के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं. थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स हैं उनसे तीनों को डिवाइड कर लेना है. तो यू कैन सी ओवर हियर 3.406 इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री. So we will divide all these 3 gram atoms by 3.406. तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को 3.406 से डिवाइड कर दिया. तो ये आंसर आया हमारे पास 1:1.33:1. अब क्योंकि ये रेशो होल नंबर नहीं है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ सूटेबल डिजिट. तो वो सूटेबल डिजिट 3 है, क्योंकि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वी विल गेट 3:3.99 which is approximately equal to 4. 3 into 1 is equal to 3. So ratio is 3:4:3. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? कार्बन 3 C3, हाइड्रोजन 4 H4, ऑक्सीजन 3 O3. So C3H4O3 is the empirical formula of ascorbic acid. Our next topic for today is combustion analysis. Combustion analysis for finding the empirical formula. Combustion analysis हम उन compounds के लिए करते हैं which have carbon, hydrogen and oxygen in them. They are known as organic compounds. So basically हम combustion analysis करते हैं organic compounds के लिए which have carbon, hydrogen and oxygen in them. प्रिंसिपल क्या है? कंबस्शन का मतलब क्या है? हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड यू गेट ओनली 2 प्रोडक्ट्स. 2 सोल प्रोडक्ट्स इन द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हमने क्या करना है, अपनी फर्नेस के अंदर सैंपल ले लेना है जिसकी हमने कंबस्शन करवानी है, लेकिन उससे पहले हमने इस सैंपल को मेजर कर लेना है. हमारे पास सैंपल 5 ग्राम्स है, 10 ग्राम्स है. वील मेजर द सैंपल एंड वी विल पुट इनटू अ फर्नेस जहाँ पे हमने सप्लाई की हुई है ऑक्सीजन, नीचे से हमने ऑक्सीजन सप्लाई की हुई है. अब हमारा सैंपल जब बर्न करेगा तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. तो आगे हमने अब्जॉर्बर्स लगाए हुए हैं. ये दोनों हमारे पास क्या हैं? अब्जॉर्बर्स. दिस इज मैग्नीशियम डाइक्लोरेट और ये है 50% KOH. जो MgClO4 ट्वाइस है ये वाटर को अब्जॉर्ब करेगा और जो KOH है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा. नाउ व्हाट वी विल डू इज़ दैट बिफोर कंबस्शन हमने इन दोनों अब्जॉर्बर्स के मास फाइंड करके रखे हुए हैं. इस अब्जॉर्बर का भी और इसका भी हमने मास फाइंड कर लिया था बिफोर कंबस्शन. अब जब कंबस्शन हो जाएगी और इसके अंदर वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा, हम उसका दोबारा मास करेंगे. फॉर एग्जांपल इसका पहले मास था 5 ग्राम्स कंबस्शन से पहले. जब कंबस्शन हो गई तो ये हो गया 20 ग्राम्स. तो हमारे पास कितना वाटर आया? 20 में से 5 माइनस कर दें तो इसका मतलब 15 ग्राम्स वाटर अब्जॉर्ब हुआ है. इसी तरह से हमने 50% KOH का मास पहले भी ले लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने के बाद भी ले लेना है और हमें पता चल जाएगा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सैंपल में प्रोड्यूस हुई है. और यहाँ पे एक और अब्जॉर्बर लगा हुआ है जो बाकी जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमारा कंसर्न बेसिकली इन 2 चीज़ों के साथ है. Now we will use these formulas for finding the percentage of carbon, hydrogen and oxygen. For finding the percentage of carbon, the formula is mass of carbon dioxide divided by mass of organic compound into 12 divided by 24 into 100. Mass of carbon dioxide कहाँ से पता चला? इधर से. ये absorber यूज़ करके हमने जिस तरह mass find किया था before and after combustion, तो हमने यहाँ से find कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड का mass. मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने जो सैंपल यहाँ लिया था कंबस्शन से पहले वो कितना लिया था, वेदर 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स, उसका मैस हमने यहाँ लिखना है. देन 12 डिवाइडेड बाई 44. 44 इज़ बेसिकली द मैस ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होता है 44. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन होती है. सो 1 कार्बन हैज़ मैस 12. तो इसलिए हमने 44 लिखा. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 12, 1 मोल कार्बन का मास into 100. This formula will give us the percentage of carbon. For finding the percentage of hydrogen, we will divide the mass of water with the mass of organic compound. Mass of water हमने यहाँ से लिया इस absorber से और mass of organic compound हमने इस sample का लिया into 2.016 divided by 18. 18 is the mass of 1 mole water. 1 mole water इसका मास है 18, वो हमने यहाँ लिखा. अब 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल हाइड्रोजन का मास होता है
1.008. अब 2 हाइड्रोजन है तो मास हो जाएगा 2.016 into 100 एंड वी विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट दीज परसेंटेजेस फ्रॉम 100. पहले इन दोनों के आंसर हमने निकाल लिए, फिर इन दोनों के आंसर को हमने क्या करना है, 100 से सब्ट्रैक्ट कर देना है. ओके तो हम अब इसी टॉपिक के जो हमने फाइंड किए हैं फार्मूलाज, इनको यूज़ करते हुए एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 4 सेज अ सैम्पल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वॉज सब्जेक्टेड टू कंबस्टन एनालिसिस. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपको कंबस्टन एनालिसिस वाले फार्मूलाज लगाने हैं. 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ये मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, gave 1.039 gram of carbon dioxide and 0.6369 gram of water. Determine the empirical formula of compound. तो mass of organic compound कितना है, 0.5439. mass of carbon dioxide is 1.039 while mass of water is 0.6369. तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए, वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज. परसेंटेज के लिए हम ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे. For determining the percentage of carbon, divide the mass of carbon dioxide by mass of organic compound and multiply by 12 divided by 44 into 100. तो आंसर आया 52.108. अगेन हाइड्रोजन का अपने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, mass of we will divide the mass of water which is 0.6369 by mass of organic compound and we will multiply it by 2.016 divided by 18 into 100. तो आंसर आएगा 13.11. And for finding the percentage of oxygen, we will subtract these two percentages from 100. 100 से हमने इन दोनों percentages को subtract कर लिया, तो आंसर आया 34.77. So हमारे पास ये 3 percentages आ गए. Our second step is to find the number of gram atoms. अभी हमने बात की नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने के लिए वी डिवाइड द परसेंटेज बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. सो फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन वी विल डिवाइड द परसेंटेज बाय 12 विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. तो आंसर आएगा 4.34. फॉर फाइंडिंग द number of gram atoms of hydrogen, we will divide this percentage by the atomic mass of hydrogen which is 1.008 and we will get answer 13.07. And again for finding the number of gram atoms of oxygen, we will divide this percentage which is 34.77 with the atomic mass of oxygen which is 16 and we will get the percentage number of gram atoms 2.17. Our third step is to find the atomic ratio. उसके लिए हम क्या करते हैं, we divide these gram atoms by the smallest value of gram atoms. The smallest value क्या है, 2.17. So we will divide all these three values by 2.17 and we will get the answer 261. So 2:6:1. 2:6:1. So carbon 2, C2, hydrogen 6, H6O1O. तो C2H6O is the empirical formula of this liquid compound. अब क्योंकि हमारा जो रेशो है वो ऑलरेडी होल नंबर थी, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.